Welcome children. Today we want to discuss about matter on the basis of chemical composition. Children, before this video I have discussed about matters on the basis of chemical composition. I classify the matters on the basis of chemical composition only two types. First is pure matters and second is impure matters. I have discussed about pure matters, that means substances. I have discussed a matter which is made up of only one kind of small particles. Only one kind of small particles. Small particles may be atoms or molecules. If you think about water, water is pure substance because water is made up of only one kind of molecules. H2O, you know chemical formula of one molecule of water is H2O. So when we think about water, then we think what? Entire water is made up of same kind of a small particle which is H2O. So water is pure substance. If you think about sugar, then also sugar is made up of only one kind of small particles which are molecules. If you think about copper, copper is also pure substance because it is made up of only one kind of atoms. Copper is made up of only one kind of atom. If you think iron, then iron is also pure substance, pure matters because it is made up of only one kind of atoms. I have discussed all these topics before this video. Now, here we have to discuss only the pure matters. Pure matters. Pure matters means it is, otherwise they are made up of same kind of small particles either molecules or atoms. On the basis of that, pure matters are classified into two groups, elements and also compounds. Pure matters are classified into two groups, elements and also compounds. Now we want to discuss about the elements. Element is what? A pure matter, otherwise we call what? A substance. Substance is pure matter. Impure matter never will be what? Substance. Substance, it means always pure. So element is what? A pure matter or substance which is made up of same kind of a small particle, and also it cannot be decomposed into simpler substances by any फिजिकल प्रोसेस. चिल्ड्रन, हम ये कहना चाह रहे थे कि एलिमेंट आपका होता है प्योर मैटर या उसी को आप कहते हो सब्सटेंस. वो प्योर होता है, जो बना होता है आपको एक ही प्रकार के एटम से. कभी कभी आपको मन में ये आएगा कि सर कुछ एलिमेंट तो आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी है, तो अगर जो एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो वहाँ पर बोलेंगे कि वो एलिमेंट आपको एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. जैसे आप बात करोगे ऑक्सीजन, तो नेचर में तो ऑक्सीजन है आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? जो है तो एलिमेंट लेकिन अ प्योर मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेकिन मॉलिक्यूल किससे बना? फिर एटम से बना है. यानी अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो भी वो बना है एक ही प्रकार के एटम से, सेम काइंड ऑफ एटम्स. और चिल्ड्रन, तुम चाहोगे कि एलिमेंट को कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, जो भी फिजिकल प्रोसेस है,
कई प्रकार का है फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप चाहेंगे जो कॉपर है, तो कॉपर तो हुआ आपका एलिमेंट, अब उसको तुम चाहोगे कि हम उसमें गोल्ड में कन्वर्ट कर लें फिजिकल प्रोसेस से, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कॉपर इनटू गोल्ड। अगर ऐसा होता, जो कॉपर को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते फिजिकल प्रोसेस से, तो गोल्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ऑर्नामेंट्स बनता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सब्सटेंस बनता है, मेडिसिन में उसका यूज होता है, डेकोरेशन में यूज होता है। तब तो आप क्या करते, जो भी आपके पास में कॉपर मिलता या आयरन मिलता, आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते, और आप तो कहते वैसे भी आपको उसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपर को कन्वर्ट कर लोगे गोल्ड में, आयरन को कन्वर्ट कर लोगे गोल्ड में, आयरन को कन्वर्ट कर लोगे सिल्वर में। इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय फिजिकल प्रोसेस। तो हम लोग किसको बोलेंगे एलिमेंट्स? अ प्योर मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये भी ध्यान रखना, सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब क्या? ऐसा सारा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ऐसे एटम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अ प्योर मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेम एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। हम बच्चे देखो यहां पर क्या बोले हैं कि सेम एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा सारा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, चाहे वो आइसोटॉप्स हो या ना हो आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स भी है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटॉप्स की हम लोग बात किए हैं क्योंकि एलिमेंट का कुछ ऐसा भी एटम्स है, एक ही एलिमेंट का ऐसा कुछ एटम्स होता है जिसका मास नंबर डिफर कर जाता है। अगर ज़्यादा ही मास पर सोचोगे तो मास डिफर कर गया तो आप कह दोगे सर तो ये तो एटम में डिफर कर गया, और आप बोले हैं कि एलिमेंट का सेम काइंड ऑफ एटम, आप बोले हैं सेम काइंड ऑफ एटम, यहाँ पर मास नंबर डिफर कर रहा है, एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, लेकिन हम क्या बोले? सेम एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। मतलब वो सारा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, उसको बोलेंगे सेम काइंड ऑफ एटम्स। और एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं, उससे लाइट मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि अब जब एटम पर चले गए हो तो उसके एटम के बाद तुम चाहोगे हम उसको जो फिजिकल प्रोसेस से नहीं, उसको चेंज कर लें उससे और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये संभव नहीं है। तो ऐसे प्योर मैटर को या नहीं तो सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो बच्चे आप पकड़ पाओगे क्या एलिमेंट किसको कहते हैं? सब आप पहले क्या सोचोगे? एलिमेंट, चलो हम लोग निकालते हैं अपना फिंगर, लिटिल फिंगर, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। अब ये ब्रेन कह दिया कि मेरा प्योर सब्सटेंस होगा। दूसरा, वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा। सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब सेम एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स, दो हो गया। और तीसरा ब्रेन जाएगा हम लोग को, भाई इस एलिमेंट को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में। ये तीन प्रॉपर्टी को जहाँ फॉलो कर रहा है जो भी मैटर, उसको हम लोग क्या कह बैठेंगे? एलिमेंट कहेंगे। तो अब बताओ, एलिमेंट तो कुछ तो ब्रेन में आया होगा, हम बोलेंगे आयरन। अब क्या फील कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आयरन? आयरन इज एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और क्या सोचोगे? इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और अब क्या सोचोगे? प्योर मैटर है नहीं, सेम एटम से बना हुआ है और इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, तो आयरन क्या कहलाएगा? आपको एलिमेंट होगा। और क्या सोचोगे? आपको हम नाम ले देंगे सोडियम। सोडियम ये एलिमेंट है, ये बना होगा सिर्फ सोडियम के एटम से, एक ही टाइप का एटम से बना होगा। आप सोच सकते हो सोडियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या होगा? एलिमेंट। अगर कोई कह दिया आपको सॉइल के बारे में, क्या सॉइल की बात हम लोग करेंगे तो क्या उस पर ले जाएंगे ब्रेन को? ये एलिमेंट है? कभी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सॉइल का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो डिफरेंट काइंड्स का स्मॉल पार्टिकल्स है, डिफरेंट काइंड्स का स्मॉल पार्टिकल्स है। नेवर वी विल थिंक अबाउट सॉइल इज व्हाट? एलिमेंट, बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल
particles, but element contains only one type of particles. So soil is not element. Now अगर आप सोचते हो कि एयर में कितना, मतलब इस नेचर में कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी जो डिस्कवरी हुआ है वो 118 है। और नेचर में जो प्रेजेंट है, जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, मेरे बारे में सोचो, गंगा सर के बारे में, गंगा सर इम्प्योर सब्सटेंस है, इनमें जितना भी एलिमेंट्स होगा, आप एयर के बारे में सोच सकते हो, आप अपने रूम के बारे में सोच सकते हो, आप वाटर के बारे में सोच सकते हो, वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसके बारे में सोच सकते हो, आप ट्री के बारे में सोच सकते हो, प्लांट के बारे में सोच सकते हो, एनिमल के बारे में सोच सकते हो, वो सारा जितना भी आप सोच सकते हो, स्टार्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, टोटल हम बोल रहे हैं नेचुरल जो भी है रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल चीज़ है, थिंग्स प्रेजेंट, वो बना है ओनली 94 एलिमेंट्स से। तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स कितना, 94। अब इसमें 94 में आपको मेटल्स है 72 और नॉन मेटल्स कितना है 22 हो गया। तो थोड़ा सा इस सब की मेमोरी में रखना पड़ता है कि टोटल एलिमेंट्स हो गया 118, बट नेचुरल एलिमेंट्स क्या हो गया। कभी कभी नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में सोचने में कंफ्यूज हम लोग कर जाते हैं। मेरा ये कहना है कि इस नेचर में जितना भी थिंग्स है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, वो इसी 94 एलिमेंट में 2 के एलिमेंट के कंपोजिशन से, या 3 एलिमेंट के कंपोजिशन से, या 4 एलिमेंट के कंपोजिशन से, या 1 टाइप ऑफ एलिमेंट के कंपोजिशन से बना है। चाहे जो भी थिंग्स है, चाहे वो आपका जिस प्रकार का हो, प्योर हो या इम्प्योर हो, बना है ओनली कितना 94। तो मेटल्स आ गया आपको 72 और नॉन मेटल्स कितना आ गया आपको 22। अब आप कह रहे थे कि एलिमेंट का कुछ कैरेक्टर के बारे में, हम उसका प्रॉपर्टी की बात अगर करें, सोचें, तो आप क्या कहोगे। पहला, सर ओनली 1 काइंड ऑफ एटम से बना होगा, कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी सेम काइंड ऑफ ना, ये जो बना होगा इट इज मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। एक कैरेक्टर आप सोच लिए। नंबर 2 सोचोगे, जो क्या सोचोगे आप, इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं ना सिंपल सब्सटेंस में। इट कैन नॉट बी splitted into simpler substances। आप आगे क्या सोच सकते हो, एलिमेंट होगा आपको होमोजीनियस, यानी कोई भी एलिमेंट आप जब लोगे, जब बात करेंगे कॉपर का, तो कॉपर का जो स्मॉल पार्टिकल होगा एटम्स, वो कॉपर के किसी भी पार्ट में, आपका कॉपर का जैसा भी शेप है, उसके किसी भी पार्ट में जाओगे, थ्रू आउट द कॉपर, उसके एटम्स का अरेंजमेंट यूनिफॉर्मली होगा। एटम्स का अरेंजमेंट्स यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होगा कि किसी खास एरिया में कॉपर का एटम ज़्यादा डेंस और किसी खास एरिया में कॉपर रेयर होगा, कॉपर का एटम्स रेयर होगा, ऐसा नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसलिए एलिमेंट को हम लोग लेते हैं होमोजीनियस होता है। कैसा सब्सटेंस, तो होमोजीनियस सब्सटेंस है। क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है। इसके बाद आप सोच रहे हो भाई इसका डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट का डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि जो अगर एक ही एलिमेंट है उसके कुछ पार्ट का डेंसिटी कुछ और दूसरे पार्ट का कुछ डेंसिटी और, या इंडिया में डेंसिटी कुछ और अमेरिका में डेंसिटी कुछ और। हम लोग डेंसिटी सोचते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एलिमेंट का डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं कि वो वेरी कर जाता है। उसके बाद आप सोचोगे, अब कह रहे सोचने के लिए ही, तो एलिमेंट का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, फिक्स होती है। एलिमेंट का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड की फॉर्म में है उसको आप लाइएगा गैसियस स्टेट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे आपका है, दो ही तो एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में है, क्या बात करते हो। एक है मरकरी जो मेटल है उसके बाद भी है लिक्विड स्टेट में, और दूसरा है आपका ब्रोमीन जो नॉन मेटल है, वो क्या है लिक्विड के स्टेट में। जितना भी नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें ओनली 2 है आपको लिक्विड स्टेट में। फर्स्ट मेमोरी में रखोगे, मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में कौन सी, ब्रोमीन। तो आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स। चिल्ड्रंस तुम इस पर सोच सकती हो, ये इसका कैरेक्टर्स है, इस आधार पर एलिमेंट को हम लोग जज कर सकते हैं। नाउ एलिमेंट का ही टाइप्स मेटल बताए हम आपको, मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस स्टेज में डिस्कशन करना सही नहीं है, लेकिन अगर मेटल्स का वर्डली मीनिंग देख लो तो आप इतना से काफ़ी काम चला सकते हो। एम का मतलब हो जाएगा मेलिएबिलिटी, दैट मीन्स व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। आप उसको क्या कर सकते हो, प्रेशर बना करके उस पर में हमरिंग करके, कथी से, हैमर से आप उसको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा गोल्ड स्मिथ जानते हो ना, छोटा सा पीस रहता है गोल्ड का, उसको वो हथौड़ा के हेल्प से इसको पीट पीट करके क्या करता है, चौड़ा कर देता है। किसके हेल्प से, हथौड़ा के हेल्प से। तो भाई सीट बन गया ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ऐसा करैक्टर होता है मेटल्स का। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को ट्रांसफर करता है आपको मेटल्स। अगर मेटल का एक आपको कोई है सिलिंड्रिकल टाइप का है, आप इसको एक एंड को हीट कर रहे हैं तो वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा आपको दूसरे एंड तक। दैट मीन्स वो हीट को ट्रांसफर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। एलॉयज, मेटल के हेल्प से आप बना सकते हो एलॉयज, जैसे आप नाम सुना होइएगा ब्रास, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, बना है मेटल से। ब्रोंज सुने हैं ना, ब्रोंज मेडल जीता, वो क्या मेटल से बना हुआ है ना, कंपोजिशन है मेटल का वो तो बना। आपको इसका मतलब ये निकला कि मेटल में ऐसा करैक्टर है कि आप एलॉयज बना सकते हो। उसके बाद है लस्ट्रस प्रॉपर्टी, एल से लस्ट्रस होता है कि मेटल के सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंस करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी आई में इंटर करेगा, तो जिस कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होगा और वही कलर का लाइट आपकी आई में क्या करेगा, इंटर, और आपको वो सरफेस उसी कलर का दिखाई देगा। जैसे गोल्ड येलोइश होता है, व्हाइट लाइट पड़ा लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ किस लाइट का, येलो का, तो आपके लाइट में, आपके आई में इंटर किया कौन सा लाइट, येलो, तो आपको गोल्ड दिखाई देता है, येलो। इस प्रकार से तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है किसमें, मेटल में। उसके बाद है सॉलिड, इसका मतलब ये निकला कि मेटल्स, जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स। बिल्कुल टोटल मेटल है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ओनली वन याद रखिएगा, बोले हैं ना मरकरी जो मेटल है उसके बाद भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद है सोनोरस, मीन्स आप मेटल पर जब भी क्या करोगे, हैमर्ड करोगे, नहीं जैसे आपके स्कूल में भी आपका जो प्यून होता है वो क्या बेल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो ब्रास का बना होता है वो, उस पर हम लोग क्या करते हैं, हथौड़ा से मारते हैं, जिससे क्या पैदा होती है, साउंड, उसको कहते हैं मेटलिक साउंड, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सोनोरस। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान लेंगे मेटल्स का। आगे भी है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, मेटल्स होता है डक्टाइल, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो एनफ है इतना करेक्टर समझना। और दूसरी बात क्या करना इसमें मेटल के लिए, जो इसमें सफिक्स के रूप में आप जब उच्चारण करोगे सफिक्स में आ जाएगा यम। अब गिनती कर लो, सोडियम में यम है, कैल्शियम में यम है, पोटेशियम में यम है, क्योंकि कॉपर में नहीं है, क्यूपरम में यम है, क्योंकि आयरन में नहीं है तो फेरम में यम है, लेटिन नाम में है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, हीलियम को छोड़ देना, हीलियम में भी यम है, लेकिन वह मेटल बस एक ही को तो छोड़ना है और सब तो हो ही सेट करिए जाएगा। अब जिंक जैसे कहोगे, नहीं आपके ब्रेन में आता है ज़्यादा नेगेटिविटी, जो गंगा सर कुछ बोले तो उस पर नेगेटिव सोचो, यार मत सोच नेगेटिव। प्रायः आपको मेटल्स के सफिक्स के रूप में यम मिलेगा, अब जैसे जिंक का नहीं मिलेगा आपको, और प्रायः मिल जाता है 99% आपको मिल जाएगा यम, तो आप पकड़ सकते हो मेटल्स। तो इतना हम लोग रखते हैं, फिर कमिंग डे हम लोग आएंगे तो एलिमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग
हम लोग चलेंगे किसकी ओर, कंपाउंड की ओर। एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी भी, कुछ प्रॉपर्टी आप भी स्टडी करोगे, हम तो डिस्कशन कर चुके हैं। चलेंगे हम लोग कुछ कंपाउंड पर डिस्कशन करेंगे, और तब फाइनली चलेंगे हम लोग लास्ट में, हम लोग को मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में इम्प्योर मैटर्स, उस पर चलेंगे। आई विल सी यू अगेन आफ्टर दिस वीडियो। यू लर्न केयरफुली, इंटेंसली क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, एंड मस्ट थिंक अबाउट। अगेन फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।